ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਈਅਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ श्रीमती कृष्णा नैयर, अरुण नैयर, मंजू नैयर, मृदु पासी, शिव पासी, रितु जैरथ, वरिंदर जैरथ, आशीष पासी, मल्लिका पासी, अनीश पासी, धृतिका हर्जल, तुषार हर्जल, ईशा अबरोल, ऋषभ अबरोल, तारिक, मोक्ष, रिशान, शिवान ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਈਅਰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਬੜ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਨਈਅਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਬੜ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਈਅਰ ਰਬੜ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਨਈਅਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਆਣ ਵਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਰਬੜ ਗੁੱਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਈਅਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਈਅਰ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰੁਣ ਨਈਅਰ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰੁਣ ਨਈਅਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। Hare Krishna
देखिए, आज के इस व्यस्त जीवन में हमारे पास समय नहीं है उस परमात्मा के लिए। सुबह से
से शाम तक दिनचर्या चलती है और आए किस लिए हैं, आने का मकसद भी भूल गए हैं। मौत तो आनी लाजमी है, मौत से पहले पहले बहुत सारे काम करते हैं। निश्चित आयु देकर भेजा है, उससे पहले क्या क्या करके जाना है, जरूरतें क्या है इंसान की और करता क्या क्या है। आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। खाना खाओ घर अपना, पहनना चार गज कपड़ा, सोना 3.5 हाथ भूमि में, जाना खाली हाथ, जलना सीता पर सच्चाइयाँ सारी जानते हैं फिर भी बेटी हैं और मानते क्या है परमात्मा सर मांगे कभी घर मांगे, कभी मांगे महल चौमारे, यश मांगे कभी मांगे पदवी, फिर हाथ फंसाए। ये मांगा कभी वो मांगा, मांगे सुख साधन सारे, जब जाए तब मांगन जाए, फिर हाथ फंसाए। जबकि कहना क्या होता है परमात्मा से, मुझे ऐसी नजर होना, मुझे ऐसी नजर होना, हर श्वास में हो तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, मुझे ऐसी नजर होना, मुझे ऐसी नजर होना। इसके शुक्राने करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन किस तरह से कह सकते हैं हम। बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया, सब कुछ दिया उस परमात्मा ने मांगने से पहले दिया था। बड़े समृद्ध परिवार के साथ बैठे हैं, इनके परिवार को देखकर, इनके संस्कारों को देखकर नजर साथ जीवन का अंदाजा लगाया जा सकता है। बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, अच्छा परिवार दिया, छोड़ी नहीं कभी दावा बरसाने में, किस्मत वाला हूँ मैं, सच्चा है समाने में, फिर भी रहूँ मैं परेशान में प्रभु, चरणों का दे दो मुझे ध्यान मेरे प्रभु, चरणों का दे दो मुझे ध्यान मेरे प्रभु। बंगला दिया,
पूछो ना दे कैसे मेरे पापा, एक सच्चे दोस्त जैसे पापा। पूछो ना दे कैसे मेरे पापा, एक सच्चे दोस्त जैसे पापा। मेरे बदन में जान जैसे पापा, मुझे मिले किस्मत से ऐसे पापा। पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। मैं दिल हूँ एहसास वो, मेरे दिल के पास वो, मेरे दिल के पास वो। मुझे किसी का दर्द हो कैसे, मेरा थे विश्वास हो, मेरा है विश्वास हो। मेरे दीन ईमान जैसे पापा, मुझे मिले किस्मत से ऐसे पापा। वक्त के धारे मोड़ दूं, हर एक बंधन तोड़ दूं, हर एक बंधन तोड़ दूं। तू जो करे दुनिया क्या, मैं भगवान भी छोड़ दूं, मैं भगवान भी छोड़ दूं। शंखनाद और अजान जैसे पापा, मुझे मिले किस्मत से ऐसे पापा। मेरे बदन में जान जैसे पापा, मुझे मिले किस्मत से ऐसे पापा। 5 मिनट के लिए और आदेश हुआ है। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जान चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जान चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल में लगा के जाने को कौन
कोई संदेश, न जाने तुम कहाँ चले गए। और नैयर साहब भी आज हमसे इतना दूर जा चुके हैं, हमारे दिलों में वो हमेशा बसे रहेंगे, लेकिन फिजिकली वो हमसे इतना दूर चले गए हैं कि उनकी कोई चिट्ठी या कोई संदेश हमें शायद हमारे सपनों में ही मिलेगा, वैसे नहीं मिल पाएगा। एक ऐसी शख्सियत जिसने 28 जून 1931 को सियालकोट में, जो अब पाकिस्तान में है, वहां पर जन्म लिया। देश की आज़ादी के समय बंटवारे के बाद वो जालंधर में आकर सेटल हुए और जालंधर में रबर इंडस्ट्री का शुभारंभ उन्होंने किया, रबर इंडस्ट्री की शुरुआत की। और आज अगर जालंधर का देश की रबर इंडस्ट्री में नाम है तो उसका श्रेय वेद प्रकाश नैयर जी को जाता है। उन्होंने जालंधर में रबर गुड्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की स्थापना की, उसके फाउंडर प्रेसिडेंट बने। लगातार 40 साल से ज्यादा सर्वसम्मति से वो इस एसोसिएशन के प्रधान रहे और उस पीरियड के दौरान रबर इंडस्ट्री को जालंधर में बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने कार्य किए, यही वजह है कि आज जालंधर की रबर इंडस्ट्री देश में अपना नाम रखती है। और यही वजह है कि उनको जालंधर की रबर इंडस्ट्री का भीषण पितामह कहा जाता है। आज उनके जाने से परिवार को तो क्षति हुई है, एक ऐसी क्षति जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और उसके साथ ही जालंधर की रबर इंडस्ट्री को भी, जालंधर के उद्योग जगत को भी एक ऐसी क्षति हुई है जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने इस अरसे में न केवल रबर इंडस्ट्री में जो नए लोग आए, यहाँ पर केमिकल डीलर्स आए, जहाँ पर इंडस्ट्री लगे, उसके लिए उन्होंने हर एक की मदद की, बल्कि हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सफेद कपड़ों में रहा, साफ सुथरा रहा, खुश मिजाज रहा। जिंदगी के आखिरी 10 साल अगर उनको सेहत की कुछ समस्याएं भी रही, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 8 साल से लगातार वो डायलिसिस पर थे, मगर उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव रही। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा, चाहे अगर डॉक्टर्स को भी मिलते थे तो डॉक्टर कहते हैं, कई बार कहते रहे कि हम अक्सर पेशेंट को पूछते थे कि आपका हाल क्या है, लेकिन नैयर साहब डॉक्टर्स को पूछते थे कि तुम्हारा हाल क्या है। एक ऐसा जिंदा दिल इंसान आज हमारे से जुदा हो गया है। और अक्सर कहा जाता है कि माली की पहचान उस फुलवाड़ी से होती है जो अपने पीछे छोड़ जाता है, और जो फुलवाड़ी वो छोड़ के गए हैं वो हमेशा हमें नैयर साहब की याद दिलाती रहेगी कि ऐसा सुंदर माली था,
ऐसा माली था जो ऐसी सुंदर फुलवाड़ी हमारे मध्य में छोड़ गया है। उनके सुपुत्र, उनकी धर्मपत्नी माता कृष्णा जी, जिन्होंने नैयर साहब के साथ 70 साल का वैवाहिक जीवन बिताया, आज नैयर साहब उनसे जुदा हो गए हैं। अरुण कपूर, अरुण नैयर जी, बबला जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, जितनी उन्होंने सेवा की है नैयर साहब की, इस दौरान उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। जितनी सेवा, जितनी तारीफ की जाए बबला जी की, परिवार की, कि उन्होंने नैयर साहब को जहाँ हर हफ्ते डायलिसिस करवाना होता है, कितना कष्ट पेशेंट को भी होता है, उन्होंने बहुत सेवा की है परिवार की। उनकी बेटियां मृदु और उनके पति शिवपासी, ऋतु और वरिंदर जैरस, इन सब ने उनका ध्यान रखा है। और बेटियों को अक्सर कहते लोग ये हैं कि ये पराया धन है, लेकिन जितनी उनको माँ बाप की चिंता रहती है, शायद बेटों से भी ज्यादा रहती है। और आज उनकी बेटी मृदु तथा उनके दामाद शिवपासी जी यहाँ पर आकर कुछ यादें साझा करना चाहेंगे। शिवपासी जी जहाँ शब्दों के साथ वो यादें रखेंगे, वहाँ मृदु उन्होंने एक यादों का संजोया है चित्रों की तरह से, चित्रों की तरह जो आकर एक 5 मिनट का एक जो प्रस्तुति है उनकी यादों की, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अनुरोध करूंगा शिवपासी जी। नैयर साहब एक एहसास जिसे महसूस ज्यादा और शब्दों में बयान कम किया जा सकता है। एक ऐसा एहसास जो दूसरों के लिए ज्यादा और अपने लिए कम किया। ऐसा एहसास जिसे महसूस किया उन सैकड़ों हजारों लोगों ने, जिनके किस्से ये बताते हैं कि नैयर साहब ने कैसे कैसे, किस किस तरह से, किन किन सिचुएशंस में उनकी मदद की, उनकी हेल्प की और उनके जीवन को छुआ। किसी गरीब परिवार में बेटी की शादी हो, किसी को पैसे की जरूरत हो, या किसी को किसी भी किस्म की समस्या हो, सबको पता रहता था कि नैयर साहब के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। कल ही मुझे कोई कह रहा था कि नैयर साहब के पास हर समस्या का he had solution to everything for everybody. He had such an impactful personality that whomsoever he met, he started feeling very close to नैयर साहब। तो जब भी उनके जीवन में कोई भी समस्या आती, कोई भी सिचुएशन अराइज होती, तो उनको यही होता कि चलो नैयर साहब के दर चले, वही हमारी समस्या का सुलझान होगा। नैयर साहब की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने लगूं मैं तो I'll really fall short of words। उनके जीवन को दर्शाने के लिए मेरी वाइफ ऋतु पासी ने एक स्मॉल ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार की है। आई होप यू विल लाइक टू सी इट एंड लाइक इट। थैंक यू।
आपका मंजर पहले दूसरा इसलिए होगी इसका बोलित होगा। पहले इसमें ये है कि दूसरा जीना है अंग्रेज का एक मिला के स्टेशन बढ़ेगी इसका नाम है कदर राष्ट्र ने किया रेवोल्यूशन बैंकर के स्टेशन गुलामी में गुलामी बने हैं। ये तो मैं बड़े ऐसा दे सकते हैं इनको एक बार और इनको काम करेंगे क्योंकि मेरे साथ हमने मशीनें लग रही हैं कम से कम 10 साल रुपये 6 साल कोई बची है कुछ लोग हैं जिनको काम करेंगे लगना तो ये काम करने से होते हैं। बाकी भगवान मेरी भगवान से प्रार्थना एक शक्ति दे ताकि जो इनको जिम्मेदारी सौंपी है वो जिम्मेदारी को जरूर कर सके। कई शक्तियों के पास आगे करता हूँ। Thank you for being my party and for choosing me as your daughter. मेरी पकड़ के तूने चलना सिखाया था, दहलीज़ों की पार कराना, बाजी में तेरी बिटिया, टुकड़ा तेरे देखा, दहलीज़ों की पार कराना। हंसते रहे आप हमारे बीच में सदा, खेलते रहे आप हमारे बीच में सदा, रोशन रहे आप हमारे बीच में सदा, जैसे रहता है सूरज आसमान के बीच में सदा। मैं मानती हूँ दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरे बाजी के बराबर कोई खड़ा भी तो नहीं होता। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। नैयर परिवार का स्वर्गीय लाला जगत नारायण जी के परिवार के साथ अटूट रिश्ता। लाला जी की पोती स्वर्गीय रमेश जी की सुपुत्री, विजय जी की भतीजी पिंटो किरण इस परिवार की बहू हुई। ये बदकिस्मती थी कि उसका साथ परिवार के साथ थोड़ा ही रहा और वो अचानक ही एक छोटी सी बीमारी, संक्षिप्त बीमारी से इस परिवार से जुदा हो गई। लेकिन परिवारों का संबंध जो है, टुकड़ा परिवार का नैयर परिवार के साथ संबंध उसी तरह कायम रहा, उसी तरह उनके साथ आपस में प्रेम रहा।
यहाँ पर उपस्थित हैं परिवार के साथ, क्योंकि ये उनका अपना ही परिवार है। इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हमारे मध्य में दिल्ली पंजाब केसरी से अश्विनी मीना जी की धर्मपत्नी किरण चोपड़ा जी भी पहुंची हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और 2 मिनट के लिए नैयर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। किरण चोपड़ा हमारे चोपड़ा परिवार से, नैयर परिवार से और रितु उनकी प्यारी सी बेटी जो अभी गा रही थी, रुला रही थी कि तूने चलना सिखाया था उंगली पकड़ कर। वाकई हर पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़ कर चलना सिखाता है। ये मेरे बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, जिन्होंने बहुत जल्दी अपने पिता को खोया। जब मुझे मैसेज मिला और उनका कि बाजी नहीं रहे, तो मेरे तीनों बच्चे बेटे मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने उनका डांस गाने के लिए कहा, बेटा उन्होंने अपनी उम्र जी है, ही वॉज 90 अराउंड 91। तो मेरा बेटा आकाश जो मेरे साथ है वो कहने लगा, मम्मी पिता तो पिता होता है, किसी भी उम्र में चला जाए वो पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। और पिता को खोना वैसे ही है जैसे सूर्य अस्त हो जाए तो अंधेरा छा जाता है, या अपने घर की छत उड़ जाए तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। जब अभी छोटी मूवी चल रही थी मृदुल द्वारा बनाई हुई, तो मुझे वो दिन याद आ गया जब अरुण का रिश्ता हमारे घर आया था। तो आदरणीय चाचा जी, पूज्य पिताजी और लाला जी ने कहा वो नैयर साहब का बेटा, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। इतना उनका मान था हमारे घर में। नैयर साहब बाजी, जिनसे मैंने भी बहुत प्यार लिया, आंटी से भी मैंने बहुत प्यार लिया। जब मैं अश्विनी जी के साथ अमेरिका में थी तो आंटी के आशीर्वाद मुझे मिलते रहते थे, बेटा तुम निकल जाओगे इस कठिनाई से। वीडियो भी बनाकर भेजी, बाजी ने बहुत आशीर्वाद दिया। पर कहते हैं ना, विधि का विधान जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। रामायण में भी लिखा है, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश सब विधिहान। हम जो भी कर लें, हमारा कभी दिल नहीं चाहता कि हमारा अपना कोई चला जाए। ये कहना आसान लगता है, पर जब अपना कोई चला जाता है क्या तकलीफ होती है, क्या महसूस होता है, सिर्फ ये मुझसे ज़्यादा आपको कोई नहीं बता सकता। क्योंकि बाजी नहीं थी, बाजी नैयर परिवार को, चोपड़ा परिवार को और मंजू जिसने किरण पिंटो की जगह ली और बिल्कुल उस जैसी ही बनी, उसी तरह मुझे भी प्यार किया। जब मैं दुख की घड़ी में थी तो रोज मंजू का मुझे मैसेज आता था, मैं भूल नहीं सकती मंजू, तुम में मुझे पिंटो की नजर आती है। बाजी वो एक सुई थी जो परिवारों को जोड़ते थे, और वो एक शख्सियत थे जो कहीं कोई छेद हो जाता तो उसका रफू भी करना जानते थे। बाजी वो शख्सियत थे। बाजी वाकई मृदु, उन्होंने आपको उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, हमें भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और मैं अरुण की अपने बबले की तो अपना जो बुजुर्गों के लिए मैं काम करती हूँ उसमें इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि ऐसा भी बच्चे आजकल हैं, श्रवण पुत्र है कि कैसे उसने सेवा की है। 6 साल डायलिसिस में रह के सेवा करना एक एग्जाम्पल है। अरुण, आई ब्लेस यू लाइक सिस्टर, लाइक मदर, आई ब्लेस यू। सभी परिवार को ब्लेस करती हूँ। और क्योंकि मेरे हिसाब से आदरणीय चाचा जी बैठे, मुझे ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहिए था, बड़े हैं वही बोलेंगे, पर क्या कहा गया है तो जरूर बोले। जय हिंद। अपनी दोनों पोतियों को, धृतिका और ईशा को, जो आज अपने ससुराल में धृतिका तुषार के साथ और ईशा ऋषभ के साथ नैयर परिवार के द्वारा दिए गए संस्कारों को, इस परिवार की जो खुशबू है उसको बिखेर रही है।
का अपने दादाजी के साथ बहुत स्नेह रहा है, बहुत प्रेम रहा है। और आज ईशा शब्दों के द्वारा अपने दादाजी के को श्रद्धांजलि या उनकी यादें कुछ कहना चाहेंगी। ईशा to pay tribute to a very special person in my life, जो कभी कभी मेरे दादाजी बोलते थे पर हमेशा मेरे फादर नहीं थे। जब पाकिस्तान से वो इधर आए थे तो he would have never imagined that he was born to change lives. First rubber factory, 40 years president, कितने लोगों की उन्होंने इतनी सेवा की और कभी दान किया किसी को बताया नहीं। 3 बच्चों को सेटल किया, पर जब उन्होंने सोचा कि अब जिंदगी का अगला पड़ाव जीने का टाइम आ गया है तो वक्त ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि वो 20 साल में पीछे चले गए। जब 2 छोटी मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों को उनकी गोद में भगवान ने डाल दिया। और he dedicated his entire life to me and my sister because he wanted to fulfill the last wish of his daughter Pintu. अब मैं सोचती हूँ कि याद तो बहुत आएगी पर कैसे आएगी। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले जब भी मैं जाती थी, जैसे वो मुझे देखते थे तो मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर मुझे याद आएगा कि जब मैं वहाँ पर जाती थी तो मुझे जोर से पकड़ लेते थे तो मेरे को लगता था मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। फिर मुझे याद आएगा कि वो जोर से मेरा हाथ पकड़ के एक ही लाइन मुझे बोलते थे, मैं खुद बैठा, चिंता करने की कोई लोड़ नहीं। और मुझे क्या याद आएगा कि जब भी मैं कुछ छोटी सी चीज़ भी करती थी तो वो सबसे पहले आकर मेरी पीठ को आकर बोलते थे आई एम प्राउड ऑफ यू। आज आई नेवर वांटेड टू क्राई टुडे बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे लाइफ ने ऐसा मौका दिया कि मेरे दादाजी मेरे बेस्ट फ्रेंड बनकर मुझे लाइफ। और इसी तरह नैयर साहब का दोता आशीष पासी, वो भी अपने नाना जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता है। आशीष His final journey to his own fire, surrounded by those who have loved him, revered him, and respected him his entire duration on this planet. At the end of it, the question that can be asked is, what is the true mark left behind by a man? Is it his deeds that can be seen? Or is it the imprints that can only be felt? We all have stories that will reverberate for multiple lifetimes about how he touched us and helped us. In his own way, with the known and the unknown, the said and the unsaid, and the seen and the unseen. He taught us what it truly means to give. To replace a tear with a smile. To replace sorrow with joy. And to replace longing with fulfillment. I feel blessed that as one of his grandchildren, my life coincided with his. From kindergarten to adulthood, from poverty to prosperity, his hand was always around us like the shadow of God. There will be many men, followed by many, many more, who will try to come close to the example of benevolence that he set. But it's going to be difficult. Because the ocean of good deeds that he did, that are invisible, I think is a lot bigger than the ocean of his good deeds that we know of.
And that, I think, is the true mark of a man. To leave an impact that is immeasurable. If I ever come back to this earth again, and it's a big if, but if I ever come back as a human again, I request you, Baji, to please be there to accept me as your grandson again. जहाँ समाज के हर वर्ग से लोग, उद्योग जगत से, राजनीति से जुड़े हुए, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए, खासतौर पर रबर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग न केवल जालंधर से बल्कि जालंधर के बाहर से भी पहुँचे हैं। मैं सभी के नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन कुछ संस्थाओं की तरफ से जहाँ शोक संदेश आए हैं मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। जालंधर रबर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जिसकी स्थापना ही नैयर साहब ने की थी, उसकी तरफ से जहाँ नैयर साहब चीफ पैटर्न थे इस संस्था के, शोक संदेश आया है प्रधान राजकुमार हरजाई जी, जनरल सेक्रेटरी अशोक मांगो जी और सेक्रेटरी राकेश बहल जी की तरफ से। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दिल्ली की तरफ से, रबर एसोसिएशन पंजाब के प्रधान चितकारा जी की तरफ से, पंजाब फुटवियर सप्लायर्स एसोसिएशन के प्रधान आर के गांधी जी की तरफ से, फेडरेशन ऑफ रबर एंड पॉलीमर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन दिल्ली की तरफ से, उद्योग नगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन दिल्ली, बहादुरगढ़ फुटवियर पार्क मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन दिल्ली, रामा रोड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, फुटवियर पार्क एसोसिएशन बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़, फुटवियर डेवलपमेंट सर्विस की तरफ से, गीता भवन ट्रस्ट आदर्श नगर, जिसके सरप्रस्त नैयर साहब थे, वहाँ की मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, प्रधान सुनील मरवाला जी और उनके साथियों की तरफ से, अपाहज आश्रम के चेयरमैन तरसीम कपूर जी की तरफ से, लाला रामकिशोर कपूर विकलांग सहायता ट्रस्ट के मॉडल चेयरमैन तरसीम कपूर जी की एसोसिएशन की तरफ से, आर्य समाज मंदिर शास्त्री नगर के प्रधान भारत भूषण नंदा जी और उनके साथियों की तरफ से, मानव सहयोग सोसाइटी के प्रधान डॉक्टर S.K. शर्मा जी और उनके साथियों की तरफ से, माँ भगवती सेवा समिति के प्रधान रमेश सैगल जी और उनके साथियों की तरफ से, श्री चामुंडा नंदीकेश्वर लंगर समिति के चेयरमैन जुगल सानी और प्रधान जगदीश अरोड़ा जी की तरफ से, जैन कॉलोनी पासरा सोसाइटी के प्रधान रवीर जैन जी की तरफ से, रबर फुटवियर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रधान नीरज अरोड़ा और महासचिव कपिल मुंशी की तरफ से, शिव ज्योति पब्लिक स्कूल दीनदयाल उपाध्याय नगर के प्रिंसिपल मिसेस नीरू नैयर जी की तरफ से, जालंधर रबर एंड केमिकल डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सिंह लुथरा और महासचिव प्रवीण नाडा जी की तरफ से, स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल प्रोजेक्ट्स एसोसिएशन की तरफ से। आज की शोक सभा में शोक संदेश पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार हैदरी जी और बाबा हैदरी जी की तरफ से भी आया है। विधायक राजेंद्र बेरी जी, पूर्व विधायक शरजीत सिंह मक्कड़ जी भी उपस्थित हैं, मनोरंजन कालिया जी भी श्रद्धा सुमन करके गए हैं और अन्य बहुत हर वर्ग से लोग आए हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ज़्यादा ले सकूँगा क्योंकि समय के अभाव के कारण हम इसको समय के साथ ही संपर्क करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूँगा इस परिवार के कुलदीप भगत जी भी उपस्थित हैं RSS से। मैं अनुरोध करूँगा पंजाब केसरी ग्रुप के मुख्य संपादक आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी, जैसे मैंने कहा कि उस परिवार के सदस्य हैं, वो परिवार की तरफ से सब एक तो वो सब तो अपनी तरफ से
क्योंकि विजय जी नैयर साहब सहपाठी भी रहे, परिवार से बंद भी रहा है। तो विजय जी जहाँ नैयर साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और परिवार की तरफ से सबका आभार। सारा परिवार इतने आए लोगों का कुछ अरुण जी बारे अजीज है मेरा, इन्हें बड़ी सेवा की थी, बहन जी ने बहुत सेवा की थी। मैं मुश्किल रहता उसी सारे शहर की करीब में थे आई है, सब कुछ दसिया जा चुका है, लेकिन शायद यह नहीं पता कि असी दोनों क्लास वालों से साड़ी उम्र भी एक ही नहीं, मेरे को 4-5 महीने बड़े। मासा वाले बाजार में मैंने काम शुरू किया। असी पाकिस्तान मैं लाहौर को आया या सियालकोट को आया, पर वो कपड़े चाहे आके नाल पड़े तो नाल काम करते रहे। ये बहुत रोना मौका नहीं। तो मैं रिश्ता भी शायद जैसे प्यार करते कोई आते को अद्भुत प्यार वाला आदमी सी, जैसा 40 साल कोई पंजाबी संस्था का प्रेसिडेंट रहे, मुश्किल 40 साल के बाद भी लगातार सारी इंडस्ट्री बैठी है उस प्यार कर सब नाल लेके चलना, सब लोग प्यार करना। तो मैं थोड़े सारे का शुक्रिया अदा करना कि तुसी आके श्रद्धांजलि दी उन्होंने, और थोड़ा बच्चों नाल उनके परिवार नाल इसी तरह ही प्यार बनिया रहेगा और थोड़ा आशीर्वाद कायम रहेगा। धन्यवाद। जय के रूप में कोई धनराशि नहीं देगा, आपका यहाँ का आना ही परिवार के लिए बड़ा शगुन है। परिवार हम सबका आभारी है और यही आचरण देता है कि जो रास्ता नैयर साहब ने बना के गए हैं, ये परिवार उसी रास्ते पर चलते हुए उनकी याद को हमेशा हमें समझते रहेगा। और परिवार ने नैयर साहब की याद में काफ़ी धनराशि का एक तरफ निकाली है, जो परिवार ने फैसला करके बाद में कि उसको किस तरह किसी अच्छे कार्य में लगाने का कार्य करेगा परिवार। और परिवार की तरफ से ये भी अनुरोध है कि प्रसाद की व्यवस्था इस प्रार्थना सभा के बाद की गई है। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया प्रसाद ग्रहण करके वैसे जाएं। पंडित जी से बुद्धदेव जी से अनुरोध है कि प्रसाद पकड़ सकते। ओम कृष्णब्रह्मस्पति देवान्यत्रेण बोधयो आयु प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिमानं च वर्धयो। ओम विश्वादिदेव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयासुभ। ओम हिरण्यगर्भः शमभरतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासे सदा धार पृथिवीं द्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम पाहि नग्नि रक्षिष पाहि तृतीया पाहि गिर्भिर्स्त्रिभिरोजं पति पाहि तस्रभिरसोः। ओम स्वस्ति इन्द्रो विदस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति कल्याणमस्तु मंगलमस्तु। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा